So Abhilasha, before giving my feedback, first of all, I want to know from you, how was the session and what do you want to rate yourself out of 10? So the session was very good and supportive because of the environment. And so, sir, it was very good. I What will do you rate want to it rate 10 yourself? out of 10. 10 out of 10. Sir, 10 Okay. marks. Yes, sir. Okay. That is very good, Abhilasha, कि every time you give yourself full rating, but एक आध marks कम कर सकते हो. That is no, there is no issue in So giving because mine. I am giving the interview first time and I'm not getting very nervous. Okay, So good. yeah. See, I'll first tell some positive things about you, and then we'll move to negatives. कि आपकी क्या गलतियां हुई इंटरव्यू में. Okay. So positive is obviously the confidence that you have is very good. The focus that you have is very good. Eye contact is very good. You smile and you give the answer. That is a very positive attitude. Whenever you give an answer, that is very good. Okay, appreciable. Okay, and apart from that, the academic skills what you have is excellent. You were able to answer all the question in academics. That was very, very good, appreciable. Okay, these were the positive qualities of yours. Okay, now coming to negatives. Okay, इंट्रो इंप्रूव हुआ फॉर श्योर. जो आपने इंट्रो कल दिया था उससे बेटर था आज का इंट्रो, बट स्टिल यू कैन ऐड सम मोर थिंग्स. ओके, थोड़ा सा और उसको ठीक कर सकते हैं हम. ठीक है, सो आई विल टेल यू लेटर कि कहाँ ठीक करना है. थोड़ा बहुत उसको और ठीक कर सकते हैं. आई थिंक थोड़ी कमी रह गई थी आज भी उसमें. इफ यू वुड हैव इम्प्रोवाइज्ड अ बिट, ज्यादा अच्छा लगता है इंट्रो सुनने में आपका. बट ओके, इट वाज गुड, ओवरऑल ठीक था. ओके, apart from this you were able to answer like whenever you answer about what things you have learned from BTech, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, आपने सोचा एक मिनट के लिए मैंने क्या सीखा है बीटेक से, ऑलरेडी सोच के रखो कि मुझे क्या बोलना है. व्हेनेवर समवन आस्क्स, बिकॉज़ पूछेंगे लोग कि यू हैव डन बीटेक, यू हैव वेस्टेड 4 इयर्स एंड नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर बाइजूस. ओके, सो आप ऐसा मत बोलो डायरेक्टली कि मेरी मतलब मैंने बीटेक में जो सीखा है टेक्निकल स्किल्स मेरी अच्छी नहीं थी. आप बोल सकते हो मैंने ट्राई किया एटलीस्ट आफ्टर बीटेक, आई ट्राइड इन माय फील्ड इन माय डोमेन, बट आई फेल्ट कि मैं वहां अच्छा नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड इन माय करियर. इफ आई फोकस, so I'll not grow very well because मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें. So that is why I chose to change my field, and I chose Byju's because Byju's is a rising company nowadays. So I thought if I give an interview here, so I can do it. Sir, if they ask that have you ever worked in a company or something like that, so sir, I have just got for the minor and major training twice during my college days, but after I completed this degree, I have not joined any this thing. ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, क्लियरली बोल सकते हो कि आई हैव नॉट वर्क, आई ट्राइड बट आई हैव नॉट वर्क. ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि लाइक आई वाज हैविंग सम सर्टेन इश्यूज एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन. जो भी आप कर रहे थे उस टाइम पे, आप बोल सकते हो आई स्टार्टेड दैट वर्क एंड उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू जॉइन कंपनी. बट आई एम वेरी श्योर इफ आई गेट अ चांस टू वर्क इन योर कंपनी, आई विल डू वेरी वेल एंड आई विल प्रोग्रेस माई सेल्फ. ओके, सो आई विल डेफिनेटली ग्रो एंड आई विल मेक यू प्राउड. You'll never feel like मैंने कभी काम नहीं किया है because I have all the experience, because some of my cousins, my colleagues work in certain companies, so I take the experience from them that how is the culture, how we have to work and how we have to manage things. So yes, I can manage everything very good in very good manner. Okay, आप बोल सकते हो, not a problem. ठीक है, वो फोकस नहीं करते हैं कि आपने कभी काम किया है कि नहीं. उनका फोकस ये होता है कि आप कैसे आंसर करते हो, हाउ डू यू कन्विंस, बीइंग द मेंटर, हाउ कैन यू बी वेरी गुड. ओके, वो जीत दे देखते हैं बेसिकली आप में. तो अगर उनको लग गया कि आप में क्वालिटीज है तो दे विल डेफिनेटली हायर यू. वो कुछ फोकस नहीं करेंगे आपने पहले क्या किया है क्या नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है. वो बस चाहते हैं कि जो आप अभी कर रहे हो उसमें कितना अच्छा कर रहे हो. दैट इज द सोल थिंग. ओके, अगेन जो मेरे मेंटरशिप क्वेश्चंस मैंने पूछे आपसे, उसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर बेटर आंसर्स. ठीक है, जैसे कि आपने जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि नो वन कॉल्ड मी फ्रॉम लास्ट 3 months एंड नाउ सडनली यू आर कॉलिंग मी. सो लाइक आई वाज वेरी आयरेट, मैं बड़े बहुत गुस्से में था. तो पहले आप मुझसे पूछते कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपको 3 महीने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं. एज यू मेंशन बहुत सी दिक्कतें आई हैं, तो पहले दिक्कतें पूछो कि क्या दिक्कतें आई हैं. तो आपने पूछा नहीं रिगरसली, आपको सुनना चाहिए था कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही है. जैसे मैं बोलता मुझे ऐप में दिक्कत है, टाइम टेबल में दिक्कत है, टीचर्स में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं. ठीक है, तो देन यू वुड हैव टोल्ड कि सर अब से मैं क्या करूंगी, एवरी मेंटर कॉल्स अ कस्टमर एवरी 15 days, बट नाउ आई विल कॉल यू इन एवरी 2 days, बिकॉज आपका बहुत लॉस ऑलरेडी हो चुका है एंड और लॉस आपका ना हो, इसलिए आई विल कॉल यू इन 2 days, ताकि जो आपका लॉस हो चुका है उसको मैं रिकवर करवा दूं. ठीक है, आपने ये बोला कि आई रिकवर योर लॉस, पर कैसे करवाओ कि भी बताना पड़ेगा कस्टमर को. आपको ये मेंशन करो कि सर आई विल कॉल यू इन 2 days, आई विल गिव माय पर्सनल नंबर, आई विल बी इन कांस्टेंट टच विद यू विद द चाइल्ड, आई विल इंटरेक्ट विद द चाइल्ड. आप बोल सकते हो ये सब चीजें, तो उससे कस्टमर विल फील ओके, चलो ठीक है, इतना भी आप बोल रहे हो दैट मींस यू विल डू वेल. ओके,
नो वन वांट्स द रिफंड, ठीक है। एक चीज मैं बोलूंगा आपको, व्हेनेवर कस्टमर आस्क फॉर रिफंड, तो आप ये बोलना, सर मैं आपको रिफंड कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, पर सर आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, तो आपने बायजूस ज्वाइन किया था, क्या आपने बायजूस रिफंड के लिए ज्वाइन किया था? क्या आपका ये मोटिव था कि मुझे रिफंड करना है बायजूस? नहीं सर, मुझे अभी भी याद है कि दैट डे यू आर हैविंग दैट होप इन योर आईज दैट आई वांट टू मेक माय चाइल्ड ग्रो, आई वांट टू मेक माय चाइल्ड लर्न इन फ्यूचर। सर वो आप क्यों खो रहे हो? एक मान लो, मैंने मानता हूँ, मैं आई एग्री कि हमारी तरफ से गलती हुई है, फ्रॉम 3 months नो वन हैज कॉल्ड यू, बट सर उसके लिए शुड द चाइल्ड सफर? क्या चाइल्ड की कोई गलती है उसमें? नहीं सर, अगर वापस कर दोगे आप एप्लीकेशन, आई विल रिफंड द मनी बैक टू यू, बट क्या आपका कोई लॉस है उसमें? नहीं। क्या मेरा कोई लॉस है? नहीं। उस बच्चे का लॉस है सर, जो ऑलरेडी अच्छा सीख रहा है। इन 3 महीने में, एज यू मेंशन, नो वन कॉल्ड यू, पर सर आप देखो चाइल्ड की रिपोर्ट तो देखो एक बार आप, इन 3 महीने में ही हैज रोज, मतलब उसने डे बाय डे इंप्रूवमेंट दिखाया है, इन एवरी रिजल्ट उसके मार्क्स इंक्रीज होते गए हैं। तो सर द होप दैट यू हैड एट द वेरी फर्स्ट डे बिफोर मेकिंग द पेमेंट कि मुझे अपने चाइल्ड को ग्रो करना है, सर वो होप आप क्यों खोना चाहते हो अपने बच्चे के लिए? थोड़ा इमोशनली टचअप करो, समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? व्हेनेवर चाइल्ड, जब कस्टमर बोलता है रिफंड करना है, थोड़ा इमोशनल टच बनाना पड़ता है, चाइल्ड को बीच में लेके आओ। अगर चाइल्ड बीच में आएगा, कस्टमर विल बी इमोशनल, अरे मेरा बच्चा, राइट, दैट हैपेंस, दैट कम्स ना, एवरी पेरेंट इज कंसर्न अबाउट द चाइल्ड, वो होता है ना कि मेरे बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा ग्रो करना चाहिए, तो उसको लेके आओ, उस एंगल को बीच में लेके आओ, तो रिफंड की बात ही नहीं आएगी कस्टमर के दिमाग में, ठीक है। एंड आपने आज भी ग्रीटिंग मिस कर दी कि हाउ आर यू सर, कोविड में कैसा रहा आपका, उससे पूछते आप, अच्छा लगता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा करो, है ना। स्टार्टिंग में मत पूछो, पर हाँ कहीं कहीं पूछ लो, वेर एवर यू फील लाइक पूछना चाहिए। I just focused on हाँ answering the question हाँ, directly, so I ऐसा just होता missed है, इट that. हैपेंस, इसलिए मैंने बोला प्रैक्टिस कर लो इस चीजों की, डायरेक्टली ये नहीं आएगा। इफ आई टेल यू दैट आप ये कर लो, पर आप नहीं कर पाओगे उस चीज को, डायरेक्टली ये नहीं आता है, ये तभी आएगा जब आप फोकस और प्रैक्टिस की हुई है आपने इस चीज की। नॉर्मली पूछ लो, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू डूइंग नाउ डेज, आप इंडिया में कोविड चल रहा था, आई वांट टू नो योर फैमिली वाज सेफ और नॉट, देन कम टू द आंसर कि सर आपका ये कंसर्न है, आई हैव दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, मेरा मेरा कंसर्न ये रहेगा, मेरा रेजोल्यूशन ये रहेगा आपके लिए। दिस वे यू कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर इजीली, अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है। ना ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कस्टमर आइरेट हो, बच्चों को बीच में लेके आ जाओ, या रिफंड करने को बोल रहा हो, बच्चों को बीच में लेके आ जाओ कि सर आपका मोटिव क्या था, तो व्हेन यू टुक बायजूस, है ना, बच्चे का क्यों लॉस करवा रहे हो, ऐसी चीजें बोल सकते हो कस्टमर को, कस्टमर विल फील ठीक हुआ यार, इस चीज के लिए बच्चे का क्यों लॉस करवाना है फालतू का, है ना। आपने ऑलरेडी पेमेंट तो कर दी है सर, सो नाउ सर आप अगर वापस करोगे तो बच्चा बिल्कुल समझ नहीं पाएगा, बच्चों को हैबिट पड़ चुकी है बायजूस से पढ़ने की, अब नाउ इफ यू चेंज द हैबिट ही विल हैव अ प्रॉब्लम, वो फिर सोचेगा मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, ये चीजें होंगी, ठीक है। तो ट्राई करो कि ऐसे इमोशनली कस्टमर को ब्लैकमेल करो, थोड़ा सा इमोशनल टचअप रहना चाहिए, ठीक है। जहां लगता है हमें कि कस्टमर बिल्कुल एडमिट हो गया रिफंड के लिए, या कस्टमर इज वेरी वेरी एनॉयड कि मुझे रिफंड चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वहां पे, ठीक है। मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप एक ऐसे इंसान हो हु बिलीव इन योरसेल्फ, यू डोंट लिसन टू अदर्स, एंड मैनेजर आपका कुछ बोल रहा है आप सुनोगे कि नहीं? बिल्कुल सुननी है मैनेजर की बात, बट अपना ईगो लूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत फेमस चीज होती है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना कि अपनी पर्सनैलिटी कभी लूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने आज तक जो किया है, जो भी आप आज हो, वो अपने ईगो की वजह से हो, अपने एटीट्यूड की वजह से हो, जो जैसे आप थे उस वजह से आप यहाँ पे आज बैठे हो, ठीक है। डोंट लूज योर एटीट्यूड, आपको ये बोलना है वहां पे कि आई विल फॉलो माई ईगो, माई एटीट्यूड, बिकॉज मेरा एटीट्यूड बहुत सही रहता है, ठीक है, आई फील, बट डेफिनेटली आई फॉलो मैनेजर्स वर्ड्स ऑल्सो, बट तरीका कुछ और होगा, जो मैनेजर ने बोला मैं वो करूंगी, पर तरीका कुछ और होगा मेरा, वाई, बिकॉज आई हैव माई ओन स्टाइल, आई हैव माई ओन वे टू रिप्रेजेंट थिंग्स, बट अपनी पर्सनैलिटी कभी नहीं छोड़नी है बीच में, जो आपने बोला कि नहीं मैं छोड़ दूंगी, कहाँ ईगो क्यों रखना है, कंपनी इज पेइंग मी तो मैं ईगो क्यों रखूंगी, ईगो रखना नहीं चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट अपनी पर्सनैलिटी को लूज भी नहीं करना है, जैसे आप हो यू ऑलवेज हैव टू बी योरसेल्फ, अपने आप को नहीं भूलना किसी के लिए, डोंट चेंज योरसेल्फ, ठीक है। तो आप ये बोलोगे आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ, आई विल फॉलो माई रूल्स, जो मैनेजर मुझे बोलेगा मैं करूंगी, बट आई विल डू इन माई ओन वे, तरीका मेरा अपना होगा, बिकॉज आई आई फॉलो माई ओन पर्सनैलिटी। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे ऐसा आंसर दो, ठीक है। तो व्हेनेवर समवन आस्क, आप इस तरह का आंसर बोल सकते हो वहां पे, ये आपके लिए काफी अप्रोचेबल रहेगा, ठीक है। और ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे एंड में अबाउट सैलरीज एंड ऑल, कि सैलरी कितनी चाहिए आपको बायजूस से, टेल मी द फिगर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आपने अच्छा आंसर दिया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो वही मुझे फिगर चाहिए, वही मुझे सैलरी चाहिए, बट यू कैन ऑल्सो लाइक, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, जब इंटरव्यू पूछता है इतना घुमाने की जरूरत नहीं है कि सर आपने लिखा तो है वहां पे वही मुझे चाहिए, अगर इफ आई एम आस्किंग यू द फिगर, आप डायरेक्टली बोलो नो सर आई विल नॉट बी एबल टू वर्क इन लेस सैलरी, इफ यू गिव मी लेस देन दैट, आई बिकॉज आई, जैसे आपने बोला, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, I am the earning member in my family after my father.
बोल सकते हो ये सब चीजें, बट घुमाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पॉइंट पे आके बोल दो, ना मतलब ना। अगर वो पूछता है यस और नो, बोल दो नो सर, it's a no because I cannot manage my expenses. You want me to work hard, I'll give my 100%, मैं सब कुछ दूंगी, अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ दूंगी, but at least I want my motivation. And what is that? My salary. जब मुझे सैलरी आएगी, I'll get my motivation, I can help my family, I can support my family, and then if you want I can work hard also, not a problem. ठीक है, तो बाकी चीजें काफी अच्छी है। जो मैंने बताया आपको, जो आप ग्रीटिंग भूलते हो, जो आपका इंट्रो मैंने बताया, वहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी यू आर गोइंग गुड, कल से आज में काफी इंप्रूवमेंट है आप में। जो कॉन्फिडेंस आप में आज है, जो आप में आज ग्लो है, वो कल नहीं था। ठीक है, तो वो आज काफी अच्छा मुझे लगा कि काफी बेटर हुआ है। जो भी आपने प्रैक्टिस करी हो, जो भी आपने सीखा हो, रियलाइज किया हो, बट आज वो काफी अच्छा था। ठीक है, तो इसको और बेटर करना है, अपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना है इस तरीके से। द स्माइल यू हैव व्हाइल गिविंग द आंसर, वो अच्छी है, उसको वैसे ही रखना। द वे यू हैव कॉन्फिडेंटली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, वैसे ही रखना है। अपना आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल ऐसे ही रखना है, बिल्कुल सेम चीज रखनी है। ठीक है, सब अच्छा है। ठीक है, बस जो आंसर्स गलत कर रहे हो वहां इंप्रूवमेंट करनी है। एंड इफ यू इंप्रूव, और फिर ऑब्वियसली थिंग विल बी फाइन, ऑटोमेटिकली सब अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और इंटरव्यू विल बी इन अ स्मूथ मैनर, इंटरव्यूअर विल हैव दैट जील कि ठीक है आप कर लेते हो, तो वो हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल आई वांट टू से इन द फीडबैक। So I think I have given all the feedback. Guys, I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे, so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.